So this is question number 7 and it is the 12th question from the question number 7 from the exercise 1.2. Okay, so let's see what is the question. Question ये है कि differentiate following function. ये function को जो है आपको differentiate करना है, ठीक है। तो differentiate करने से पहले क्या करना होगा कि first simplify this whole question, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो, so this value and this value both are same, square root of 1 plus sine of 4x dividing by 3, and this value is also same, 1 plus sine 4x dividing by 3 inside of the root. So these both values are same and this value is equal to this, ठीक है। So suppose this is considered as a A, this considered as a B, so this is also A and this is also B. Okay, so यहाँ पे क्या करना है कि छोटा सा कैलकुलेशन आपको करना है कि this whole numerator is in the form of A plus B and denominator is in the form of A minus B. So what I am doing, I am just subtracting this denominator from the numerator. First I am adding this denominator in the numerator. So A plus B plus add this denominator in the numerator and A minus B. Okay, and then from this numerator subtract this denominator, subtract, and then see what is the result. So finally you will get this plus b and minus b get cancelled. A plus a, it is the 2a, and this plus a and minus a get cancelled, and after getting multiplied with this minus get the plus b. So b plus b is the 2b. So this 2 get cancelled, and finally you will get the a upon b. So this is whole simplification of this a plus b and a minus b. So I am using this result for this whole calculation. Okay, so simplification of this whole square bracket, finally I will get a upon b after applying or after performing this some basic calculation. Okay, so I can write this value as a cot inverse of A. A means it is the square root of 1 plus sine 4x dividing by 3 and dividing by B. B means this is B value, square root of 1 minus sine 4x dividing by 3. ठीक है, ये तो पहला स्टेप हो गया। इसके बाद में क्या करना है कि आपको ये जो रूट के अंदर फंक्शन दिया है इसको भी सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला इज दैट 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू, आई कैन राइट दिस 1 एज अ cos x by 2 plus sin x by 2, sorry, cos square x by 2 plus sin square x by 2. This addition by basic identity it is 1, and I can write this sin x as a 2 sin x by 2 into cos x by 2, ठीक है। and it is by formula sin 2 theta is equal to 2 sin theta into cos theta. तो यहाँ पे जो भी थीटा होता है वो यहाँ पे हाफ हो जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे x है तो यहाँ पे बन गया वो हाफ x by 2, ठीक है। सो ये जो पूरा है इट इज इन द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। यानी आई कैन राइट दिस वैल्यू एज अ a प्लस b होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें जो है a का वैल्यू cos x by 2 एंड b वैल्यू इज sin x by 2 होल स्क्वायर, ठीक है। इसके पहले भी जो है मैंने इसका प्रूफ बताया है। तो करना ये है कि ये जो पूरा वैल्यू है इसको ये फॉर्म में लिखना है, बस एंगल चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जैसे x के लिए बन गया ये x by 2, तो यहाँ पे जो अपना एंगल है दैट इज द 4x by 3। सो इसका हाफ एंगल यानी मल्टीप्लाई बाय हाफ करना होगा, ठीक है। तो ये बनेगा, जैसे ये 2 and 4 कैंसिल होगा तो ये बनेगा 2x by 3। तो यहाँ पे जो है x by 2, तो यहाँ पे वैल्यू आएगा अपना 2x by 3, क्योंकि इसका पूरा कैलकुलेशन मिल रहा है 2x by 3, ठीक है। और यहाँ पे भी जो आएगा इट इज ऑल्सो द 2x by 3, ठीक है। सो आई एम जस्ट राइटिंग हियर डायरेक्टली, और ये पूरा मैंने प्रूफ यहाँ पे लिख के दिया है। सो y इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट this value I can write in this form, and from this form I can write in this form, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये बनेगा cos, नाउ एंगल कितना आना है 2x by 3, ठीक है, प्लस
साइन 2x by 3 and it's a whole square. सेम फॉर द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में क्या होगा कि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे साइन आएगा माइनस, यानी ये बनेगा cos 2x by 3 माइनस साइन 2x by 3 एंड इट्स अ होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्योंकि ये ब्रैकेट होल स्क्वायर है तो ये स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो जाएगा, सो ये और फिर सिंप्लीफाई हो जाएगा। व्हाट इज सिंप्लीफिकेशन? सिंप्लीफिकेशन जो है इसका आएगा y is equal to cot इनवर्स ऑफ दिस स्क्वायर रूट गेट कैंसिल, तो ये बनेगा सिंपली cos 2x by 3 प्लस साइन 2x by 3, ठीक है, देन cos 2x by 3 माइनस साइन 2x by 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर देना है कि जस्ट कन्वर्ट दिस cot इनवर्स इनटू द tan इनवर्स, तो वी कैन इजीली यूज द tan फॉर्मूला। ठीक है, तो cot इनवर्स ऑफ थीटा, अगर इसको मुझे tan फॉर्म में लिखना है तो क्या बनेगा, ये बनेगा tan इनवर्स 1 by थीटा, यानी जो भी थीटा का वैल्यू है वो इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, सो आई एम जस्ट राइटिंग दिस cot इनवर्स इन द फॉर्म ऑफ tan इनवर्स, एंड इन्वर्स करने के बाद क्या होगा कि ये वैल्यू इन्वर्स हो जाएगा, यानी ये बनेगा cos 2x by 3 माइनस साइन 2x by 3 डिवाइडिंग बाय cos 2x by 3 प्लस साइन 2x by 3। ठीक है, तो ये पूरा वैल्यू जो है इन्वर्स हो गया है, एंड जो इनिशियली cot इन्वर्स था इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू द tan इन्वर्स। ठीक है, इसके बाद में क्या करना है कि ये सारा कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं अपन, क्योंकि यहाँ पे जो है इनर फंक्शन tan में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो tan में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है आपको कि सिंपली जो है यहाँ पे जो है डिवाइड बाय साइन। ठीक है, तो डिवाइड बाय आप साइन करो तो साइन से डिवाइड करने के बाद, यानी जो भी एंगल ये यहाँ पे है, जैसे एंगल 2x by 3 है, वही एंगल लेके जो है आपको साइन से डिवाइड करना है, या फिर साइन आप कॉमन ले लो, सॉरी साइन से नहीं, ये कॉस से आप डिवाइड करो। सो कॉस से डिवाइड करने के बाद क्या होगा कि कॉस डिवाइडिंग बाय कॉस ये बनेगा यहाँ पे 1। ठीक है, यहाँ पे अगर कॉस से डिवाइड करते हो आप तो साइन अपॉन कॉस बनेगा tan 2x by 3, यानी मैं जो डिवाइड कर रही हूँ दैट डिवाइडिंग वैल्यू इज cos of 2x by 3। इससे आपको जो है हर एक टर्म को डिवाइड करना है। ठीक है, सो फर्स्ट वैल्यू गेट कन्वर्टेड इनटू 1, सेकंड वैल्यू गेट कन्वर्टेड इनटू tan। ठीक है, ये भी कन्वर्ट हो जाएगा 1 प्लस साइन अपॉन कॉस, यानी इट इज द tan। तो ये कन्वर्शन करने के बाद में क्या होगा कि आई कैन राइट दिस वन एज अ tan पाई बाय 4, तो मैं यहीं पे लिख लेती हूँ दिस वन मीन्स आई कैन राइट द tan पाई बाय 4। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से जो है फॉर्मुलेट हो गया है। ठीक है, सो आपको ये फॉर्मूला पता है कि tan ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू tan a माइनस tan b डिवाइडिंग बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है, तो दिस इज tan a माइनस tan b डिवाइडिंग बाय 1 प्लस tan a। So I can write here tan a. How can I write? So here is 1 and I can write this one as a tan pi by 4। ठीक है, so tan a into tan b। ठीक है, तो ये पूरा पोर्शन जो है फॉर्मुलेट हो गया है एंड इसका वैल्यू जो है वो इक्वल आता है tan of a minus b। So y is equal to tan inverse of tan a minus tan b. So a value is pi by 4 minus b value is 2x by 3। ठीक है, so this finally tan inverse and tan get cancel and यहाँ पे जो आएगा pi by 4 minus 2x by 3। यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखवा के देती हूँ आपको कि tan of a minus b is equal to tan a minus tan b divided by 1 plus tan a into tan b। So this is formula which I use here
और ये फाइनली सिंप्लीफाई हो गया है, बस यही से आपको डिफरेंशिएट करना है। सो y इज इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस 2x/3। यहाँ से अगर आप डिफरेंशिएट करोगे सो dy बाय dx, दिस डेरिवेटिव इज 0 बिकॉज इट इज कांस्टेंट वैल्यू, एंड यहाँ पे x है तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो ऐसे करके ये पूरा डेरिवेटिव आएगा -2/3, एंड फाइनली यू विल गेट dy बाय dx इज इक्वल टू -2/3। सो इट इज फाइनल आंसर। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। इसमें भी जो है डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, एंड दिस इज गिवन फंक्शन इज tan इनवर्स ऑफ cosec a x plus cot x, ठीक है। सो y is equal to tan inverse of, so just simplify this function. I can write this cosec x as a 1 upon sin x plus cot x means it is a cos x upon sin x. So y is equal to tan inverse of, so here is common denominator, so just add the numerator. So I can write here 1 plus cos x dividing by common denominator sin x, okay. So y is equal to tan inverse of, so 1 plus cos x यानी क्या होता है कि 2 cos square x by 2, it is a formula for the 1 plus cos x, ठीक है। जो भी एंगल यहाँ पे रहता है उसका हाफ एंगल यहाँ पे होता है, ठीक है। एंड साइन एक्स जो है साइन 2 थीटा के फॉर्मूले से आता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी थीटा है वो हाफ बनेगा, यानी बनेगा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, ठीक है। यहाँ पे जो है कुछ वैल्यू कैंसिल होना है, so what I cancel, 2 get cancel, this cos and cos get cancel, जो रिमेनिंग रहा वो रहा है cos अपॉन साइन, cos x by 2 डिवाइडिंग बाय sin x by 2, ठीक है। so this cos अपॉन साइन ये बनता है cot, ठीक है। नाउ आउटर फंक्शन तो tan इनवर्स है एंड इनर फंक्शन मिल गया cot, तो cot को कन्वर्ट करना होगा tan बाय अलाइड एंगल फॉर्मूले से, ठीक है। सो ये cot कन्वर्ट होता है इनटू द tan, एंड व्हाट इज अलाइड एंगल फॉर्मूला, cot थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ 90 माइनस थीटा। सो यहाँ पे आएगा 90 यानी पाई बाय 2 माइनस थीटा यानी x बाय 2। सो आई एम राइटिंग हियर फॉर्मूला दैट cot theta is equal to tan of 90 minus theta, okay. So 19 is pi by 2, okay. So finally this whole value get converted into the tan, so this tan inverse and tan get cancelled, so y is equal to pi by 2 minus x by 2, and from this differentiate, so derivative is dy by dx, constant value derivative is 0, and minus x by 2 derivative is 1 by 2. So final derivative dy by dx is equal to minus x by 2. So this is final solution.